Mohit, how are you? I'm fine, sir. How are you? Yeah, Mohit, I'm also fine. And how does it feel to be a recommended candidate? Sir, it feels good. Mohit, where are you from? Sir, I am from Uttar Pradesh, Muzaffarnagar. Muzaffarnagar. Acha, acha, okay. Muzaffarnagar. Okay, great, 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 great. Tell me, Mohit, I remember to have seen you in APPA in February this year. Yes, sir. And but you went for your SSB late. I mean, due to the pandemic, it got delayed. Yes, sir. Sir, because of the pandemic, the all the SSB dates are delayed. So you got recommended from which board? Sir, from 17 board, Bangalore. Bangalore, okay. And that was for CDS entry, I suppose. Yes, sir. CDS 40 entry. OTA entry. Mohit, I also came to know that this was your first and the last chance. Yes, sir. How come you decided so late to join the defense services? Sir, actually, I have decided so early to join the defense or the army. But sir, because I am involved in my college time, I am involved in co-curricular activities, and I have extensively participated in all these activities. So that's why when I came to know that now I got only 3 attempts left. So then I started preparing, and my first and second attempt, technically, which was my first and second attempt, I didn't clear the exam, serious exam. But this CDS 2 2020 is my last attempt. So SSB is my first and last, and the CDS exam is my last. Okay, great. But then you never tried for the NDA when you were young? Sir, I've tried for the NDA, but I didn't clear the exam. So what was your graduation in? You're an engineer? No, sir. I've done graduation in PSC. BSc. So Yes, sir. how come you are not able to clear the CDS exam? Where were you facing the problem? Sir, I think because of poor planning and lack of strategy. Okay. So I'm sure this must have come up during your interview. This question would have been asked. Yes, sir. So you told them that it was because of poor strategy and poor planning. Sir, he asked why you didn't clear your CDS exam in your first and second attempt. So, sir, I told him that I didn't strategize my preparation. I just purchased all the required books that are needed for the exam, and I just studied and studied. But uh, I didn't actually मैंने कोई strategy नहीं बनाई कि how I'm going to deal with the exam. I just made notes and study. I actually sir, study everything. I studied all the subjects like economics, polity, geography, history, everything. लेकिन उसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, तो उस वजह से मैं एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया. बट लास्ट टाइम में मैंने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई, एग्जाम को समझा, फिर उसको जैसे मैंने एक अपना स्ट्रेटेजी बनाया था कि मैं हर संडे एक मॉक टेस्ट दिया करूंगा अपना. फिर उससे मुझे अपना प्रिपरेशन का मैं किस पाथ पे हूँ, सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, वो मुझे अंदाजा लगता रहा. तो फिर उससे मैं अपना सीरियस एग्जाम क्लियर कर पाया. If you go through the last few years question paper, you would come to know which are the topics where more number of questions are asked. Yes, तो अगर sir. वो selectively वो topics को भी अच्छे से कर लें Yes, sir. और तो उससे भी काफी फायदा हो जाता है. That's what we keep telling our students also for the NDA. Yes, sir. तो Yes, sir. ये सारा the syllabus is so vast, unless you plan and strategize well, it is very difficult to cope up. Fair enough. But tell me, you were talking about participation in co-curricular, extracurricular activities, which you did extensively. Could you please tell as to what are those quality of those activities that you participated in? Sir, I've participated in I've done modeling in my college, and in second year I also organized some events, host many events, and in my third year I joined our theater group of our college. That is, and I participated in all those theater activities. So that's why I didn't get actually time to study for the CDS exam. You didn't try Bollywood and all?
मॉडलिंग नो कर सर, रखा है, थिएटर कर रखा है, हैंडसम दिखता है। सर वो बस उस टाइम एक्चुअली मुझे नई नई चीजें ट्राई करने का हमेशा शौक रहता है। तो और मैं स्कूल टाइम से भी यही सब चीजें कर रहा था। स्कूल टाइम से भी सभी को करिकुलर एक्टिविटीज में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो कॉलेज में मैंने उसको और कंटिन्यू किया। और इस चीज को मैंने थोड़ा सा अपने डिले कर दिया कि मैं सीडीएस एग्जाम को बाद में कर लूंगा, पहले मैं ये कर लेता हूँ। तो उसी वजह से सर लास्ट में जाके अकल आई थोड़ी। ओके, मतलब आपने स्पोर्ट्स वोर्ट्स नहीं खेला स्कूल कॉलेज सर में? स्कूल कॉलेज में स्पोर्ट्स वैसे ही खेला फ्रेंड्स वगैरह के साथ, बट कभी इस तरह से कंपटीशन में नहीं खेला। तो ये भी सवाल उठा होगा तुम्हारे इंटरव्यू में कि ये थिएटर और मॉडलिंग तो क्या इवेंट होस्ट किया था तुम्हारा, तो योर प्रेफरेंस इज समथिंग वेरी डिफरेंट देन द फौज। यस सर। सर एक्चुअली बिकॉज ऑफ माय फादर इज एन आर्मी मैन, सो आई एम ऑलवेज मोटिवेटेड टुवर्ड्स जॉइनिंग द आर्मी। तो बस वो प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया, लेकिन हमेशा मेरा गोल तो यही था कि मैं आर्मी को ही ज्वाइन करूंगा। वेरी गुड। सो इज योर फादर स्टिल सर्विंग? सर ही इज रिटायर्ड नाउ। He was in the army, so he यस retired as what? एज जेसीओ, नायब सूबेदार। ग्रेट। जब उनको आपने बताया होगा पहली बार पापा हो गया है मेरा रेकमेंड, यस सर। कैसा रहा उनका रिएक्शन? काफी खुश थे सर। You really made him very proud. I don't know how much he must be able to express it to you, but as a father, I can tell you that that is one moment which is amazing, which is amazing यस to सर। hear. And फिर जब घर पहुंचे तो गले वले लगाए कि नहीं? यस सर, लगाया सर। पापा तो एक्चुअली बहुत हमारा फादर गॉट इमोशनल एक्चुअली। हाँ, होना ही था वो, बिल्कुल। वो छोटी बात नहीं है ना, इट इज नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट। जिस फादर ने 30-35 साल जो भी फौज में दिए हो और बेटा वहीं अफसर बन रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उनकी भावना हम समझ सकते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर यू विल आल्सो अंडरस्टैंड द वे आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। सो हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मोहित यू आर? सर आई हैव 2 यंगर ब्रदर्स। अब उनका हौसला बुलंद हुआ है कि नहीं कि फौज में जाना है? यस सर, यस सर। बहुत सर बढ़िया। एक्चुअली सो यू आर गोइंग टू both my younger brothers are preparing for defense exams. ओह, सो वे दे आर इन व्हिच क्लास? सर जो सबसे छोटा है ही इज परसुइंग बीए एंड ही इज इन सेकंड ईयर। और जो बीच में है उसकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स कंप्लीट हो चुकी है। वो अभी सीडीएस और एफकेट की प्रिपरेशन कर रहा अच्छा, तो व्हेन डिड यू फिनिश योर ग्रेजुएशन? है सर इन 2018। अच्छा, 3 साल हो गए। मतलब पूरा यस सर। ग्रेजुएशन कर लिया, फिर सीडीएस का एग्जाम देने बैठा और फिर 2 बार यस सर। नहीं हुआ, तीसरी बार हुआ। ये तो पक्का 100% ग्रिल किया होगा इंटरव्यू ऑफिसर ने, 3 साल घर पे बैठ के क्या किया? यस वेरी सर। ऑल्सो वर्किंग समवेयर? सर ऑनलाइन वर्क किए थे, बट कभी मैंने इस तरह से कंपनी वगैरह में जॉब नहीं किया। ओके, तो ये 3 साल जब आप घर पे बैठ के कर रहे थे तो पापा ने कुछ बोला नहीं आपको? सर पापा को विश्वास था कि हाँ कर लेंगे। और दूसरा मैं और तो सर कुछ करने को था नहीं, तो पढ़ाई करता था। और दूसरा ये जो भी थोड़ा बहुत छोटी मोटी अर्निंग थी, तो उससे मुझे ये था कि हाँ मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। और फिर जब प्रिपरेशन कर रहा था तो और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के एग्जाम्स दिए, तो वो भी क्लियर हुए। तो उससे फिर घर वालों को भी कॉन्फिडेंस बन रहा था कि हाँ पढ़ तो रहे हैं। और कौन से एग्जाम्स दिए आपने? सर मैंने साथ के साथ एसएससी सीजीएल और सीपीओ और एसएससी के एग्जाम सर काफ़ी, और रेलवे के एग्जाम ये सब दिए। ओके, ये भी सब पूछा गया होगा आपको यस इंटरव्यू सर। में? यस सर। I must say that interviewing officer must have really found something good in you. Normally, इसको थोड़ा सा I'm saying this for the benefit of the future defense aspirants. यस सर। Normally इसे थोड़ी खटास पैदा हो जाती है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के मन में।
Yes, sir. एंड 3 साल ग्रेजुएशन के बाद घर बैठ के तैयारी कर रहा है, 2 बार कर नहीं पाया, तीसरी बार किया, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। चलो कोई नहीं, एंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, and you are, I'm sure he must have found you to be a genuine candidate and wanting to join the force. Very good. Now tell me, Mohit, जब आपका एग्जाम, when did you clear your exam? That is last year, 2020. Yes, sir. CDS 2 2020 October. और उसके बाद फरवरी 2021 में आप हमारे पास आए। Yes, sir. तो एग्जाम अक्टूबर में हुआ, आप अच्छा, तभी हमारा वो भी बंद था शायद, एकेडमी नहीं, एकेडमी तो चालू था, नवंबर में चालू था, नवंबर दिसंबर जनवरी में। Yes, sir. तो इतने लेट कैसे आया? सर अच्छा, सीट्स नहीं मिल रही है। यस सर। आई नो मोहित, ये बहुत बड़ा इशू हो गया है आपका के लिए अभी। और हम लोग जो है अभी दिन में 2-2 3-3 लोग फोन पे लगे रहते हैं, बेचारे ये कैंडिडेट्स को ना ही बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मतलब अब कितने बच्चे, तुम्हें पता है कि वी डोंट टेक मोर कैंडिडेट्स, क्योंकि ज्यादा बच्चे लो तो फिर वो डाइल्यूशन होता है और ध्यान नहीं दे पाते। तो हमने कभी किया ही नहीं ये काम, तो इसलिए शुरू से हमने ये पकड़ के रखा है कि भाई वी विल नॉट ओवर क्राउड द क्लास, उतना ही लो जितना आप अच्छे से पढ़ा सके। तो बहुत बच्चों को हमको ना बोलना पड़ रहा है। हर बैच में 30-35 बच्चे वेटिंग लिस्ट में रह रहे हैं आजकल। ये ऐसा भी एक दौर आ गया है आपका के साथ। तो जो भी मैं मतलब थ्रू दिस इंटरव्यू आई वुड लाइक टू टेल ऑल द एस्पिरेंट्स कि भाई लास्ट मोमेंट में कोशिश मत करो। अगर आपको विश्वास है अफवाह पे, इफ यू ट्रस्ट अफवाह, इफ यू वांट टू गेट दिस थिंग, प्लान योर एडमिशन और प्लान योर रजिस्ट्रेशन वेल इन एडवांस। लास्ट में इतने फोन आते हैं मुझे, मैं बच्चों को ना बोलता हूँ, मेरे को बड़ा बुरा लगता है। तो यू प्लान योर दिस थिंग अभी जैसे एफकैट का निकल गया रिजल्ट, अभी आपका आईएमए का भी एसएसबी आ गया है, डेट्स निकल गए, तो दे शुड प्लान देयर विजिट। फेयर इनफ। तो व्हेन यू केम इन फरवरी मोहित, तो आप 14 दिन हमारे साथ रहे। तो आपने जब मेरे को मैसेज भेजा था आपके रिकमेंडेशन के बाद, सर योर गाइडेंस रियली हेल्प्ड, तो ऐसा क्या हेल्प कर गया कि आप मोहित सीधा रिकमेंड ही हो गए? ऐसा क्या हुआ होगा? सर वहां जाके जो मुझे लगा सर, काफी लोग ना सर वहाँ पे काफी अंधविश्वास एसएसबी के बारे में बहुत होते जा रहे हैं कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, जीटीओ हमें ऐसा कर लिया तो फिर जीटीओ सर हमें नेगेटिव रैंक देंगे या नेगेटिव नंबर देंगे। इस तरह के सर काफी अंधविश्वास बच्चों के मन में बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो और अफवाह में आके सर मेरे डाउट्स काफी क्लियर हुए कि क्या हमें एक्चुअली करना चाहिए और क्या एक्चुअली नहीं करना चाहिए हमें। जैसे सर मेरे में भी काफ़ी फ्लॉज थे। आपने भी कई बार मुझे जीडी करते हुए टोका था कि मैं थोड़ा बहुत लाउड होने के चक्कर में मैं डोमिनेट हो जाता था। तो वो आपने उस चीज़ को मना किया, क्योंकि सर काफ़ी कैंडिडेट्स तो यही सोचते हैं कि अगर वो लाउड रहेंगे, ग्रुप में अपनी प्रेजेंस शो करेंगे तो जीटी उनको देख लेगा। तो इस तरह के काफ़ी डाउट्स रहते हैं सर। तो वो मेरे आके बहुत डाउट्स क्लियर हुए कि किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए। ये लाउड होके डोमिनेट होना, लाउड होके लोगों के नजरों में आना का क्या मतलब हुआ? ये तो यही हुआ ना, आप अपनी आवाज से दबा रहे हो लोग। अरे यू शुड बी लाउड बेस्ड ऑन योर कंटेंट। जहां तुमने कंटेंट ठोक दिया, फैक्ट फिगर्स डाटा लॉजिक और एग्जांपल्स ठोक दिए, तो वहां तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं है। शांत रह के भी आप जीत जाओगे बाजी। ऑल दिस raising the voice, using hand gestures and trying to suppress everybody, that is dominating behavior. It's not a right thing to do. Okay, fair enough. That is okay. और ऐसा क्या था कि where do you think it really helped you? आपका का जो presence, the 14 days you spent in आपका, और कहाँ तुम्हें इसका फायदा हुआ? सर सबसे ज्यादा फायदा तो मैं कहूँगा कि जो हमें ग्रुप डिस्कशंस 6 ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा लगा, क्योंकि हमने उस एनवायरनमेंट को एसएसबी जाने से पहले ही हम उस एनवायरनमेंट को जी लेते हैं कि ग्रुप डिस्कशन का एनवायरनमेंट कैसा होगा और किस तरह से हर एक कैंडिडेट अपना पॉइंट रखने की कोशिश करेगा और उसमें हमें किस तरह से गैप्स ढूंढ के अपने पॉइंट्स पुट करने हैं। और सर एक जो आपके एक आप की थ्योरी है जो आप हमेशा कहते हो कि participate and withdraw, पुट योर पॉइंट्स, पार्टिसिपेट एंड विथड्रॉ।
तो सर इस चीज पे मैंने सबसे ज्यादा इस चीज को दिमाग में रखा अपने। जब भी मुझे मौका मिलता था मैं 2 बातें बोलता था और चुप हो जाता था, बाकियों को मौका देता था। तो मुझे लगता है सर कि जीटीओ के टास्क में या फिर जितने भी ग्रुप डिस्कशंस हुए, सबसे ज्यादा मुझे इस चीज ने बहुत हेल्प की कि मैं सिर्फ कॉन्टिन्यूसली बोलता ही नहीं जा रहा था। जब मुझे गैप मिलता था मैं 2 बातें बोलता था, ग्रुप की डिस्कशन को आगे बढ़ाता था और चुप हो जाता था। ऐसे ही होना चाहिए ना। वहां पे जो बाकी के बच्चे बैठे हैं पीपीएनडीटी में, वो क्या तुम्हारा प्रवचन थोड़ी सुनने आए थे? ये यस पूरा सर। फिश मार्केट जो होता है, ये बनावटी है और लोग बनाते हैं इसे। इट डजंट हेल्प। अपनी बात रखो, निकलो बाहर, दूसरों को यस भी सर। बोलने दो, उनकी बात सुनो। मैं ये कहता हूँ, लिसन, थिंक, स्पीक। लिसन, थिंक, स्पीक। तो क्या बंदा कनेक्ट भी होता है कि अच्छा लास्ट ये बात बोली गई है, इसके आगे मेरे को क्या बोलना है। वरना कई बार ये यस सर। होता है कि पीपीएनडीटी में खासकर ये होता है कि सारा कुछ डिस्कस हो गया, थीम डिस्कस होगी, एक बंदा बीच में से शुरू हो जाता है, जेंटलमैन आई थिंक देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन द इमेज। यस तो भैया हो यस गया सर। ना यार, खत्म, अब आगे बढ़ो। राइट। दैट्स वेरी गुड। एंड दैट आई मैं तो आज भी यही कहता हूँ, हर बच्चों को यही कहता हूँ कि ओवर पार्टिसिपेट मत करो। यस सर। जो 4 बार बोलो, 6 बार बोलो, लेकिन मतलब की बात बोलो, लॉजिकल बात बोलो और बाहर निकलो, दूसरों को बोलने दो। वो क्या बोल रहे हैं यस उसको सुनो, उस पे सोचो, और फिर आपको लगता है कि सही है, गलत है, या कोई और पॉइंट रखनी चाहिए, अपनी बात फिर रखो। दैट इज अ सर। हेल्दी वे ऑफ आर्टिकुलेटिंग, हेल्दी वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ। सी प्लीज अंडरस्टैंड, आपके जरिए मैं सबको ये कहना चाहता हूँ ये बात, कि इट इज नॉट हाउ मेनी पॉइंट्स यू गेव, it is a test of your behavior. How do you behave in a group? If you are going to be continuously speaking, you are straight away showing your selfish, showing yourself to be selfish. किसी और को बोलने नहीं देना, मैं नहीं बोलने देना, मैं नहीं बोल देना, मैं नहीं बोल देना, ये सारा ये तो आपका बिहेवियर ही गड़बड़ हो गया ना। तो हो सकता है तुमने पूरी थियरी बता दी, पूरा बढ़िया पॉइंट बता दिया, लेकिन यू आर नॉट अ ग्रुप मेंबर ना, यू आर नॉट वर्किंग एज अ टीम मेंबर। सेम हैपेंस इन पीजीटी। I don't know how it happened with you. How was your PGT experience? सर पीजीटी काफी अच्छा था। पीजीटी में जब हमारा पीजीटी स्टार्ट हुआ तो वही सर, जब सभी कैंडिडेट सबसे पहले जो भी हेल्पिंग मटेरियल्स होते हैं उन्हीं की तरफ भागते हैं उनको उठाने के लिए। तो वो लकी था कि सर मैं आगे था, मेरा चेस्ट नंबर 1 था, तो मैंने एक अपना हेल्पिंग मटेरियल उठाया और फिर मैंने वे बनाया एक। फर्स्ट तो सर पीजीटी बहुत इजी होता है, तो वो तो पहले सबके हो ही गया। फिर उसके बाद सर मैं पार्टिसिपेट अगर मैं कर रहा था तो मैं एक हेल्दी पार्टिसिपेशन कर रहा था, मैं बाकियों को भी मौका दे ही रहा था। क्योंकि हमारे ग्रुप में कुछ थे कैंडिडेट जो डायरेक्टली वहाँ पे बोल रहे थे कि लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई। मैंने कहा ठीक है, सभी ट्राई करेंगे। तो सर ओवरली, जैसे आपने बताया, ओवरली पार्टिसिपेट मैंने कहीं भी नहीं किया। अब जहाँ पे ग्रुप स्टक हो रहा था तो आपने जैसे बताया था हमें कि अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हो, तुम टास्क के अंदर नहीं हो, तो बाहर से भी हमें अपने आइडियाज देने चाहिए जब ग्रुप स्टक हो जाए। तो वही सर मैंने कुछ आइडियाज दिए, अच्छे आइडियाज सेकंड थर्ड में, तो वो आइडियाज लगे और हमने पीजीटी कर लिया। Very good. Yes, sir. Again, lot of people focus only on giving ideas, only on giving ideas. फिर वो भूल जाते हैं कि मैं भाई आइडिया तो ठीक है मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे दे रहा हूँ? Am I being dominating? Am I being selfish? Am I obstructing somebody else from trying his idea? See, the group aim should never be forgotten. Yes, It's a sir. group test, na? The group aim is that collectively, as a group, all of you should be able to reach the end of the fourth obstacle within the time constraints of 40 minutes. ये तो तभी होगा when everybody will coordinate, cooperate, and कुछ आइडिया उसके, कुछ अपने, कुछ किसी और के, ऐसे मिलजुला के काम करेंगे, तभी तो आगे बढ़ेगा ग्रुप। अगर सेल्फिश ही बनना है तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। वेरी गुड। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद साइक टेस्ट? साइक टेस्ट सर, साइक जब मैं आपा में आया था तब सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे साइक में ही हुई थी। क्योंकि साइक में जैसे सर स्टोरीज में सबसे पहले मेरी स्टोरीज नहीं पूरी हो पाती थी, डब्ल्यूएटीज में मैं सारे लिख नहीं पाता था, और सेम थिंग हैपन विद एसआरटी एंड एसटी। तो सर आपा से आने के बाद, जैसे कि आपने बोला ही था कि इस चीज़ को यहाँ से कोचिंग लेके जा रहे हो, तो दिस इज़ नॉट श्योर कि सभी के सब रिकमेंड हो जाएंगे। तो जो अपने ऊपर काम करता रहेगा वही रिकमेंड होगा। तो वही सर मैंने अपनी स्पीड के ऊपर, जहाँ जहाँ मैं लैग कर रहा था अपनी पर्सनैलिटी में, अपने स्पीड पे, तो वो सब मैंने सर इम्प्रूव किया। जैसे मेरी स्पीड सच में काफ़ी स्लो थी, तो उस पर मैंने काफ़ी वर्क किया सर।
तो साइक फिर मुझे काफी इजी लगा था। वेरी गुड। पहली बात तो ऐसा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्रिंसिपल समझ में आ गया, तो बात रहती है सिर्फ प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रॉडन योर इमेजिनेशन। हम लोग बोलते हैं ना आपको कि हर हर इमेज पे चार चार पांच पांच अलग अलग स्टोरीज लिखो। तो ये क्या है, ये क्या बेसिकली इट इज ब्रॉडनिंग योर इमेजिनेशन। ऐसा नहीं है, कोई भी बंदा बेवकूफ नहीं है। वो 23-24 साल जिंदगी जिया है, तो उसको काफी सारे एक्सपीरियंसेस हैं उसके दिमाग में। बट कुछ पुराने हैं, कुछ बरीड है, कुछ अंदर है। जब तक बैठ के आप सोच सोच के अलग अलग स्टोरी नहीं लिखोगे, तो ये आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। और इसमें बंदे जो हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जैसे आपने बताया बहुत सारे मिथ्स या रॉन्ग परसेप्शंस लोग लेकर आते हैं एसएसबी में। इसका सबसे बड़ा कारण भी यही है कि आज अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट में ऐसे 50 गुरु आ गए हैं, जो खुद कभी एसएसबी क्वालिफाई नहीं किए, वो खुद भी वो प्रवचन दे रहे हैं एसएसबी में। तो ये जो ओवर एक्सपोजर हो रहा है, अनसन चीजें सुन रहे हैं, अनसन स्टोरीज पढ़ रहे हैं, पता भी नहीं किसने लिखा है, क्या लिखा है, ये सारा माइंड को करप्ट कर रहा है। यस सर। मैं तो कहता हूँ बहुत ही आसान है सेक्स टेस्ट। तो मैं आप लोगों को बताता ही हूँ जब यहाँ आप लोग आते हो, कि सबसे आसान टेक्निक, या मतलब सबसे, मतलब अगर थोड़ा सा भी समझ समझ गया कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस कर ली, ये बड़े आसानी से कर सकते हो आप। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बैठ के थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर 50 इमेजेस पे पांच पांच स्टोरी बना रहे हो, तो 200-250 स्टोरी आपके दिमाग से निकला हुआ स्टोरी है। किसी और की स्टोरी मत पढ़ो, आपके अपने तजुर्बे से, वॉट एवर यू हैव एक्सपीरियंस्ड, वॉट एवर यू गॉट एक्सपोजर, वॉट एवर यू रेड, हर्ड, सीन, उसके बेसिस पे स्टोरी बनाओ, तो बड़े नेचुरल स्टोरी बनता है। इट रिफ्लेक्ट्स योर मेच्योरिटी लेवल। और ये छोड़ के अगर आप इसके उसके लिखे हुए स्टोरीज रट के जाओगे, तो वो ऑब्वियसली पूरी इनकंसिस्टेंसी आपके परफॉर्मेंस में दिखेगी, और कोई साइकोलॉजिस्ट फिर उसको कभी पास नहीं करेगा। दैट इज फॉर श्योर। आज स्पीड के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वर्ड्स को लेके पांच पांच सेंटेंसेस अलग अलग अपने दिमाग से बनाओ। इतने सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे दिमाग में, तो आपको वर्ड दिखते ही आपको कुछ ना कुछ जरूर कनेक्ट होगा। दैट विल बी योर नेचुरल रेस्पॉन्स, नॉट गोइंग टू बी समबडी एल्सेस रेस्पॉन्स। एंड साइक टेस्ट इतना आसान इसलिए भी है कि इसमें किसी का इंटरफेरेंस ही नहीं है। जीटीयू में तो फिर भी मान लें कि भाई 9 बंदे हैं और ग्रुप में, उनकी पर्सनालिटी आपके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकती है ना। जीटीयू में इंटरव्यू में भी कई बार इंटरव्यू ऑफिसर्स की खुद की पर्सनालिटी कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को हिंडर करती है। कुछ होते हैं जो बहुत रफ बोलते हैं, तो फिर उससे थोड़ा बच्चा डर जाता है। कुछ होते हैं बहुत प्यार से और फ्रेंडली तरीके से इंटरव्यू कराते हैं। तो ये, बट साइक में ऐसा कुछ है ही नहीं। आप यू आर Yes, sir. कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। वेरी गुड। नाउ हु हैड टेकन योर इंटरव्यू व्हेन यू वर इन आफ्पा? Sir, it's Lieutenant Colonel Amit. Uh, नहीं, इधर आफ्पा में जब आप आए थे। sorry, sir. Commander. Sorry. आपका में सर हमारा लिया था चक्रपाणी सर ने। कमांडर चक्रपाणी सर ने लिया Yes. था। ओके। अब वो उनका स्टाइल अलग है, वो स्ट्रेस पे लाते हैं बंदे को। Yes, sir. स्ट्रेस इंटरव्यू होता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सब, देखो कैसा है, सारे इंटरव्यू ऑफिसर्स अलग होते हैं, सबकी अपनी पर्सनैलिटी होती है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस डाले तो ही अच्छा इंटरव्यू हुआ, ऐसा कुछ नहीं। अल्टीमेटली पूछना उन्होंने वही है, और उन्होंने खोलना आपको है ही है। खोल के देख ही लेंगे वो। कुछ सबका अपना अपना स्टाइल होता है, कुछ फ्रेंडली तरीके से लेते हैं, कुछ स्ट्रेस में ला के देखते हैं। बट चाहे कैसा भी इंटरव्यू रहे, कहीं ना कहीं आपके पूरे इंटरव्यू में एक बार तो स्ट्रेस में लाना ही है। लाइवलीनेस तो चेक करना ही है। वन शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। और क्या, पता है होने वाला है, तैयार होके जाओ। आज तो भैया प्रेशर पे आना ही है। तो इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। वंडरफुल। सो बाय फार, इट सीम्स एवरीथिंग हैज वेंट ऑफ वेरी वेरी वेल विद यू। एंड आपका मेरिट निकल गया, मेरिट लिस्ट आ गया? Yes. Sir, next month आएगा. नेक्स्ट मंथ आएगा। वेरी गुड। सो कीप पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एंड मेडिकल हो गया आपका? यू आर Yes, sir. वेरी गुड। टेल मी 2 moments or one moment that you remember about AFPA.
सर जीटीओ का ही सर, सारे मोमेंट्स में तो कहूँगा जीटीओ का ही मुझे याद आते हैं अगर आपको की मैं बात करता हूँ तो, क्योंकि सर जीटीओ में सबसे ज्यादा आपके साथ और असदमीत सर के साथ इंटरेक्शन हुआ था, तो वो सबसे ज्यादा फ्रेंडली वे में आपके जो बताने का तरीका था वो सबसे बेस्ट था। तो सर एक मोमेंट था सर जो मुझे अभी भी याद आता है, जब हसदनीस सर हमारा पीजीटी करा रहे थे, तो हसदनीस सर सर कई बार वो अलग अलग तरीके से सर ग्रिल करते हैं। वो कभी कभी बहुत फ्रेंडली होकर हमें हमारे रास्ते में अड़चन डालते हैं, या फिर कई बार एकदम से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो वो चीज़ सर इससे हम मेंटली प्रिपेयर हो गए कि अगर हमें वहाँ पे जीटीओ ऑफिसर कैसा भी मिल जाए तो हम किस तरह से उसके साथ डील कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड। उनका वो अपना स्टाइल है। वेरी गुड। यस सर। ओके, फाइन, बहुत बढ़िया। एंड I always say, the maximum credit goes to people like you who believed us, and you went on to put in your hard work in the directions that we showed you. And AFPA is growing, and AFPA is doing well, and AFPA has also shifted in its new location. It's a beautiful location adjoining a lake, a huge lake, and children are very happy. The facilities are much better than before, and I really look forward to contributing more to the nation and to the armed forces. So Mohit, it was wonderful talking to you, and any one advice you would like to give to the future defense aspirants? सर जितना सर मैंने एसएसबी के प्रोसेस को समझा, ये इट इज़ अ पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट। तो सर अब हमें जो मैंने अपने ऊपर वर्क भी किया था आपका से आने के बाद, तो साइक, जीटीओ और इंटरव्यू तीनों को अगर हम अपने पर्सनैलिटी प्रोफाइल के अंदर लाकर हम परफॉर्म करेंगे तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। क्योंकि सर कई बार साइक में इंसान की पर्सनैलिटी कुछ और होती है और ही इज़ राइटिंग समथिंग एल्स। तो और वही सर जीटीओ में और वही इंटरव्यू में होता है। तो जो आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल है, सबसे पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग अगर हम रिएक्ट करेंगे तो बहुत ईजी और बहुत ही स्मूथली एसएसबी निकल जाएगा। ये तो मैं भी बताता हूँ आप लोगों को कि बी योर नेचुरल सेल्फ। कोई इतना खराब नहीं है, कोई भी बंदा इतना खराब नहीं है। जो पूछते ना, डू यू हैव इट इन यू, मैं तो कहता हूँ यस, एवरीबॉडी हैज इट इन। इट इज जस्ट दैट यू शुड प्रोजेक्ट व्हाट you have rather than trying to be somebody else that you are not. वो वहाँ इनकंसिस्टेंसी आती है, तो फिर आप तकलीफ में आते हो। चलो, very well done. And we from all of us in AFPA, we wish you all the very best, and may God be with you. Do your training well and make your father proud, make your unit proud, make this nation proud. And keep in touch with AFPA, and we would like to always welcome you back, so that you can come and talk to the youngsters and motivate them and inspire them. ये चलन थोड़ा कम हो गया है, मे बी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। नहीं तो पहले बच्चे रेकमेंड होने के बाद AFPA जरूर आते थे मत्था टेकने। और अभी में hopefully we will not have the third wave and everything should be normal. I look forward to you coming back, if not now, maybe after the commissioning. And you must visit AFPA. It is your alma mater, it is your institute. It is, हम तो रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ये इसको आगे आप लोगों को बढ़ाना है। Thank you, Mohit. It was wonderful talking to you. Good luck. Jai Hind. Thank you, sir. Jai Hind, sir.